इयन मचाडो गैरी 10 साल की उम्र से ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं। अर्ली 2010s में कॉनर मैग्रेगर के राइज से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना पूरा फोकस चेंज करके एमएमए की तरफ कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 15 अगस्त 2026, एक्सफिनिटी मोबाइल अरीना, UFC 330। You know, we're coming to Philly. We got Islam Makhachev and Ian Gary. I think, my opinion, the crowd in the arena, they're gonna support me. इयन गैरी सिर्फ 25 मिनट दूर होंगे अपने UFC चैंपियनशिप के सपने से और कॉनर के 11 विंस मोस्ट बाय एनी आयरिश मैन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। It's about Ian Machado Gary becoming the champion of the world, going in there and beating him by any means necessary. It doesn't matter how the first second goes, it doesn't matter how the last second goes. लेकिन उनके रास्ते पे जो खड़ा है वो UFC का करंट पाउंड फॉर पाउंड किंग है। इस्लाम मखाचेव 2 डिवीजन चैंपियन है और UFC में खुद इमॉर्टैलिटी गाड़ने की वर्ज पे हैं। वो केज में उतरेंगे एंडरसन सिल्वा के 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक रिकॉर्ड को तोड़ने। I'm gonna show, guys. I'm the best fighter in the world. That's why I have to show that today night, and I will show you, inshallah. He tried to, in the fight week, he always tried to be like bad guy, but he act like he bad guy. Everybody say, I'm gonna knock him out, Islam, I'm gonna do some beat Islam, but when fight's beginning, they all forgot what they say. चैंपियन की कैम का कहना है ग्राउंड पर इयन का 0 चांस है। This little skinny Irish kid, 30 size waist, he's gonna get grabbed up and smashed by Islam Makhachev. He's a Chinese version, knockoff version of Conor McGregor. He's not Conor McGregor. He's ragey, he moves a lot. He runs a lot. Is there anything Charles can tell him about you that you're worried about? Yeah, Charles gonna teach him how to tap fast. That's it. This fight, I think, first time when I'm take him down, I have chance to finish him. These guys say a lot of crazy shit. He'd say he's gonna bounce his head on the wall. He's gonna finish him after 4 rounds. This dude talking about finishing people. This guy lost 11 fights. He have 9 decisions. बैटिंग में देखे तो इयन गैरी 3-1 अंडरडॉग हैं, लेकिन फॉर्मर वॉल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद को यूनानिमस डिसीजन से हराने के बाद द फ्यूचर इस टाइटल फाइट में एंटर कर रहे हैं क्रेजी स्टैट के साथ। इयन ने 15 से 17 टेकडाउन अटेम्प्ट्स को रोका है, वो भी 2 ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर बिलाल मोहम्मद और शफकत रखमानोव के अगेंस्ट। I can shut down people's wrestling. I'm telling everyone this now. I'm phenomenal on the feet. I'm phenomenal on the ground if you can get me there. वेलकम बैक टू MMA जिला। आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं 2026 की सबसे बड़ी फाइट। Bilal couldn't take me down, so Islam, you try to take me down, and you have a duty to defend that belt against the best welterweight on the planet. It's Ian Machado Gary. कैसे 175 पाउंड के सबसे पोलराइजिंग प्रोस्पेक्ट ने इस डिवीजन की लैडर को क्लाइम करके टाइटल शॉट अर्न किया। I think this is going to be Islam's toughest fight that we've seen recently. I think that stylistically Ian Gary is a pretty bad matchup for him, to be honest. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या उनकी स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग UFC के करंट पाउंड फॉर पाउंड टेरिफाइंग ग्रैपलिंग पजल को सॉल्व कर पाएगी। Ian's a great guy and he's a formidable opponent for Islam Makhachev, and even Khabib Nurmagomedov is worried about Ian Gary and how well he's going to do. या उस रात UFC 330 में हिस्ट्री लिखी जाएगी। And he will lose everything August 15. Mark my word. I cannot wait to step into the octagon against Islam Makhachev and beat him, because there will be no doubt that I have done it against the best. इयन गैरी का करंट राइज कोई किस्मत नहीं है। इयन गैरी ने बहुत हार्डवर्क किया है इसके लिए, और उस हार्डवर्क को समझने के लिए हमें करंट ट्रैश टॉक, मीम्स और हेडलाइन से हट के देखना होगा। द फ्यूचर बनने से पहले इयन गैरी डबलिन आयरलैंड में बचपन से ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे। My mom's one of the toughest people I've ever met. She does absolutely everything for us. Likewise, my daddy giving me absolutely everything he can when he can. That's kind of why I'm so driven. 10 साल की उम्र से वो बॉक्सिंग ट्रेन कर रहे थे, जिसने उनकी कॉम्बैट फाउंडेशन बनाई। I was expecting myself to be a professional boxer since when I was 10. I definitely had the skill sets to do it when I was younger. उसके बाद उन्होंने जूडो में ट्रेन किया और 18 साल की उम्र तक ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ग्रैपलिंग बेस फॉर हिम। Loads of different things, boxing, judo, and now MMA, and I've just fallen in love with MMA and I'm addicted to it. इसी स्ट्रगल में 16 साल के इयन गैरी की मुलाकात आयरिश स्टार कॉनर मैग्रेगर से हुई, एक सूट शॉप में, जहां पे उन्होंने ली ये फोटो जो रिसेंटली वायरल भी हो गई है। जैसे जैसे कॉनर का स्टारडम एक्सप्लोड हुआ पूरे यूरोप में, इयन और भी सीरियस होते चले गए MMA करियर को लेके। I can attribute a lot of my career to. If it wasn't for him, I don't know how fast it would have taken me to find this sport. Post-fight press conferences where he's sitting there and he's like, 50 G's, baby! I only went to college to please my mum. I was the middle child. Can you please go, because I want you to go to college. He quit college and I went and I joined the gym and I said, this is what I'm going to do. And I started cleaning windows and I started training.
अपनी शुरुआती दिनों में खिड़कियां साफ करके अपनी ट्रेनिंग को सपोर्ट करते थे वो, और उसी टाइम ये गैम्बल सही भी साबित हुआ। गैरी ने रीजनल सीन में फाड़ के रख दिया। 21 साल की उम्र में प्रो और केज वॉरियर्स में एब्सोल्युटली डोमिनेट किया। 2021 में उन्होंने एक हाईलाइट रील नॉकआउट दिया यूएफसी फाइटर रुस्तम अख्तम को, जिससे उन्होंने वेकेंट केज वॉरियर्स वेल्टरवेट टाइटल के लिए शॉट बुक किया। और इस टाइटल फाइट में उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक फ्लैशी स्ट्राइकर नहीं है। 24 फाइट वेटरन जैक ग्रैंट को फेस करते हुए गैरी पहली बार अपनी फाइटिंग करियर में चैंपियनशिप राउंड तक गए। उन्होंने सिर्फ जैक को स्ट्राइकिंग में आउटक्लास ही नहीं किया कि हील हुक्स, नी बार्स और आर्म बार्स को कंफर्टेबली डिफेंड भी किया और एक डोमिनेंट यूनानिमस डिसीजन से जीत हासिल की। इस गोल के साथ एमएमए वर्ल्ड का अटेंशन भी था अब गैरी के पास, और उनके अनडिफीटेड रिकॉर्ड के साथ यूएफसी का कॉल भी तुरंत आया। This is a letter that my mom wrote to me when I decided to quit college and pursue my dream of being a professional MMA fighter. Quit college and I went and I joined the gym and I said, this is what I'm going to do. Ian, taking a year out to figure out what you're going to do is stupid. Being the next Conor McGregor is not planned. Congratulations to Ian. I'm in the UFC now. 6 नवंबर 2021 मैडिसन स्क्वायर गार्डन, इयन गैरी का डेब्यू एमएमए वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टेज पे, जहां वो कंटेंडर सीरीज के विनर जॉर्डन विलियम्स से लड़ने वाले थे। From day one, since I started my fighting, the bigger the stage, the brighter I shine. Doesn't get much bigger than MSG. लेकिन ये डेब्यू ऑलमोस्ट एक डिजास्टर बनने से रह गया। विलियम्स ने अर्ली प्रेशर रखा और हैवी पंचेस लैंड किए गैरी पे शुरू से ही, लेकिन राउंड खत्म होने से 1 सेकंड पहले ही गैरी ने राइट हैंड लैंड किया विलियम पे, जिससे वो फौरन मैट पे ड्रॉप हो गए। ए बजर बीटर फिनिश। इस वेल डिजर्व फिनिश के लिए उन्हें बोनस तो नहीं मिला, लेकिन मैसेज क्लियरली पहुंच गया था सब तक, द फ्यूचर इज हियर। इयन गैरी ने धीरे धीरे वेल्टरवेट रैंकिंग्स को क्लाइम करना शुरू किया। इसी के साथ उनकी फाइटिंग आइडेंटिटी भी बन गई, एक 6 फुट 3 इंच का फाइटर जो इस डिवीजन में एक्सेप्शनली रेंजी है। Super tall, super elusive elite striking, judges the distance really well. गैरी एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर है जिन्होंने अपना गेम डिस्टेंस मैनेजमेंट, एलीट फुटवर्क और पंचिंग जैब्स पे बनाया हुआ है। Ian's footwork is very good. His distance management is very good. He's got a very good series of lancing attacks. His takedown defense is excellent. इवन कॉनर मैग्रेगर के कोच ओवेन रैंडी ने इयन गैरी की फाइट आईक्यू को प्रेस किया है। इसके बाद इयन गैरी जीतते ही चले गए। उन्होंने अपना पहला बोनस लिया एक फ्लॉलेस हेड किक नॉकआउट से डैनियल रॉड्रिगस पे। उन्होंने वेटरन्स जैसे नील मैग्नी को डोमिनेट किया और जॉफ नील के अगेंस्ट एक वॉर में खुद को बेटर साबित किया। लेकिन उनका एवोल्यूशन हमें UFC 303 में दिखा माइकल वेनम पेज के अगेंस्ट। It's more a case of trying to belittle what he knows is a dangerous thing, make it feel smaller because it's going to help him with his confidence. He's had one win in the UFC. I'm younger, I'm faster, I'm more talented, more technical, and there's a reason why I'm hyped as one of the best prospects this sport's ever seen. स्पोर्ट्स के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्राइकर के सामने इयन गैरी ने पैनिक नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। सिर्फ अपनी स्ट्राइकिंग पे रिलाई करने के बजाय उन्होंने ग्रैपलिंग का भी यूज किया। गैरी ने माइकल वेनम पेज नाम का टेस्ट पास कर लिया था यूनानिमस डिसीजन से। 2024 के एंड तक इयन गैरी 15-0 थे और यूएफसी के 8 अपीयरेंस में अनडिफीटेड थे। लेकिन टाइटल शॉट की पिक्चर में आने के लिए गैरी को शॉर्ट नोटिस पे एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट रखा गया जो अभी तक कभी भी स्कोर कार्ड्स तक नहीं गया था, जिसका 100% फिनिशिंग रेट था, द बुगीमैन शफकत रखमानोव। You give me Coben, you give me Usman, you give me Shavkat. I've told you, I need to be one of the greatest to ever do this, and I need to take out the guys at the top. दिसंबर 2024 UFC 310 इन लास वेगस। तब तक के चैंपियन बिलाल मोहम्मद ने टाइटल डिफेंस विड्रॉ कर लिया था एक इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन स्टेज सेट थी और शफकत को नया अपोनेंट चाहिए था। इस डिवीजन में शॉर्ट नोटिस पे शफकत से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। He's clearly doing something right. 18-0, every single one of them finishes. उस टाइम UFC के सेवियर बने इयन मचाडो गैरी। I went out there on 3 weeks notice. I saved this event. I saved this card against the scariest man in the division. सिर्फ 21 दिन के शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने इस फाइट को एक्सेप्ट किया डिवीजन के बुगीमैन शफकत रखमानोव के अगेंस्ट। You have to respect this man taking on Shavkat at short notice. Yeah, I like that Gary is willing to take that risk because he knows go big or go home. If I want to get a shot at that belt, it's right now. शफकत इस फाइट में 18-0 के रिकॉर्ड के साथ उतर के एक एस्टोनिशिंग 100% फिनिशिंग रेट के साथ, and he never really been in trouble, never really been tested. लेकिन गैरी ने इस बुगीमैन के मिथ को पूरी तरह खत्म कर दिया। Me and Shavkat are making history here, 33-0, and that sells the fight itself. Just want to go out and kick the shit out of him.
5 rounds, Shavkat always finds a way. More than likely, Shavkat's going to get a finish. फाइट एक केज वॉर प्रूव होती है। पहली बार अपने करियर में शफकत को किसी ने इतना डीप राउंड्स में ड्रैग किया था और एक फिनिश डिनाई की थी। 25 मिनट की फाइट में गैरी ने फिनोमिनल टेकडाउन डिफेंस शोकेस किया, एलीट हेड मूवमेंट और शफकत को फोर्स किया हार्डवर्क करने के लिए, हर एक स्ट्राइक, हर एक टेकडाउन के लिए। Honestly, he impressed me this fight. I thought that they was going to give him the decision. शफकत ने भी इयन को प्रेज किया उनकी परफॉर्मेंस के लिए। It was hard. Ian Gary is not an easy opponent, but it was good for me to feel the full distance. पोस्ट फाइट इंटरव्यू में गैरी डिफाइंड रहे और बोला, And I do not feel like I lost today. My hand might not have got raised, but I came out and I fought a giant. I came out and I fought the boogeyman, and I showed that he's fucking human. लेकिन एक रियलिटी सीमेंट हो चुकी थी इस फाइट के बाद। गैरी ने अपना जीरो खो दिया था, लेकिन इस फाइट ने प्रूव कर दिया था कि उनकी स्किल्स चैंपियनशिप लेवल है। अपने करियर की पहली लॉस से बाहर आने के बाद पूरा एमएमए वर्ल्ड ये देखना चाहता था कि गैरी कैसे रिस्पॉन्स करते हैं एक लॉस के बाद। It might be a loss on the record, but it's not a loss on my soul. इस सवाल के जवाब में एक बार उन्होंने फिर शॉर्ट नोटिस फाइट लिया ब्राजीलियन नॉकआउट आर्टिस्ट कार्लोस द नाइटमेयर प्राटेस के अगेंस्ट। Prates might be the best guy in the whole division, and if he's not, he's amongst the best guys in the whole division. प्राटेस एक रैकिंग मशीन है और इस फाइट के टाइम वो यूएफसी के 4 नॉकआउट स्ट्रीक पे थे और अपने एमएमए करियर में 10 नॉकआउट स्ट्रीक पे थे। Carlos Prates is dangerous. The man's got real punching power, whether it's knees to the body, punches with the left or the right hand, kicks to the head. The man is aggressive. सिर्फ प्राटेस ही नहीं, उनके जिम फाइटिंग नट्स के 4 और फाइटर्स कायो बेहायो, जीन सिल्वा, मरीसियो हुफी और प्राटेस को मिला ले तो यूएफसी में ये 19-0 पे थे और कंटेंडर सीरीज भी काउंट करें तो 24-0। गैरी सिर्फ एक फाइटर से फाइट नहीं कर रहे थे, वो टाइड वेव ऑफ मोमेंटम से टकराने वाले थे। It's gonna be a big fight for me, and I think after beating Ian Gary, I'm gonna be really close for fight for the title, and I'm gonna fight Ian Gary, and guess what? I'm gonna make the bonus again. But I promise you now, I want to knock this guy out. I want to beat him where he's best, and I don't want him to have any excuses. फाइट के पहले 15 मिनट गैरी ने अपनी मास्टर क्लास दिखाई। पहले 3 राउंड गैरी ने डोमिनेट किया, लेग किक स्ट्रेट किए, प्राटेस को एक बार वॉबल भी किया फीट पे और ग्राउंड पे भी ओवरवेल्म किया। I went out there and I dominated him from the first round all the way to the last round. प्राटेस ने चैंपियनशिप राउंड में एक डेस्परेट कमबैक ट्राई किया और नियरली फिनिश भी कर दिया था गैरी को। और जब 5th राउंड के ऑनस्लॉट पे क्वेश्चन आया तो गैरी ने रिप्लाई किया, आई वॉज नॉट हर्ट, आई वॉज कॉन्शियस एट एवरी मोमेंट। लेकिन नंबर देखें तो हमें इस फाइट में ट्रू स्टोरी पता चलती है। गैरी ने प्राटेस को आउट स्ट्राइक किया 141-64 इन टोटल स्ट्राइक्स और एक डिसीजन विक्ट्री सिक्योर की। I told everyone what I was going to do. I was going to outclass him, and I believe I did that. इस एक विक्ट्री से इयन गैरी ने कार्लोस प्राटिस के हाइप ट्रेन को डिरेल कर दिया था। उसी के साथ फाइटिंग नट्स की अनडिफीटेड स्ट्रीक भी टूटी थी। Wasn't that much of a fight. I mean, I dominated 99% of the fight. इसके रिवॉर्ड में उन्हें UFC 318 में वॉल्टरवेट टाइटल का बैकअप फाइटर बना दिया गया। अब टाइटल शॉट फाइनली इयन के रीच में थी। 2025 आते आते वॉल्टरवेट डिवीजन के चेहरा काफी बदल चुका था। UFC 322 मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इस्लाम मखाचव ने अपने लाइटवेट टाइटल रिलिंक्विश करके 170 पाउंड डिवीजन में मूव अप किया था। जैक डेला मेडेलेना को डोमिनेट करके वो 2 डिवीजन चैंपियन बने UFC हिस्ट्री के और इस प्रोसेस में उन्होंने एंडरसन सिल्वा की विनिंग स्ट्रीक की बराबरी कर ली। Man, this is the dream. All my life for this to wealth. Donald Trump, let's go open the White House. I am coming. इससे एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद इयन गैरी ने अपना स्टेटमेंट दिया बिलाल मोहम्मद को एक डोमिनेंट यूनानिमस डिसीजन से हरा के। और इस फाइट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट, बिलाल जो एक रेसलर हैं, उन्होंने 7 टेक डाउन शूट किए और इयन गैरी ने सारे ही डिफेंड किए। इस विन के साथ ही उन्होंने पोस्ट फाइट माइक लिया और इस्लाम मखाचव को कॉल आउट कर दिया। Bilal couldn't take me down, so Islam, you try to take me down. लेकिन टाइटल शॉट पाना इतना भी आसान नहीं। उसी मंथ राइजिंग स्टार माइकल मोरालेस ने शॉन ब्रेडी को ब्रूटली नॉकआउट किया और कार्लोस प्राटिस ने बाउंस बैक किया। कंटेंडरशिप पूरी भरी हुई थी। मोरालेस ने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में बेल्ट क्लेम की, वहीं इयन गैरी का भी उनको रिप्लाई आया जहां वो मोरालेस को प्राटिस से लड़ने को बोलते हैं टाइटल शॉट खुद के लिए रिजर्व रख के। Everybody has an opinion on who should fight who next in the welterweight division. Here's mine. Carlos Prates versus Michael Morales, because it is 2 power-heavy hitters, and I want to see who comes out on top. I doubt Morales would take it because the truth is, Carlos Prates hits harder.
यूएफसी ने गैरी की साइड ली। इवन इस्लाम ने भी मोरालेस के कंटेंडरशिप डिसमिस करके आयरिश मैन से लड़ने की डिमांड की और अब स्टेज सेट हो गई यूएफसी 330 के लिए और स्टेक्स काफी हाई हैं। इस्लाम मखाचिव के लिए विक्ट्री उनकी टाई ब्रेक कर देगी एंडरसन सिल्वा से, सेटिंग अ ब्रांड न्यू रिकॉर्ड फॉर 17 कॉन्जिक्यूटिव विन। और इयन गैरी के लिए ये उनका चाइल्डहुड ड्रीम है। इस मैच में विन उनका अनडिस्प्यूटेड क्राउन सिक्योर करेगी, उसी के साथ उन्हें मोस्ट विक्टोरियस आयरिश मैन भी बना देगी, जहां वो कॉनर मैग्रेगर के ऑफिशियल टोटल विन्स के रिकॉर्ड को पास करेंगे। एज गैरी सेड हिमसेल्फ, आई वांट टू बी द टाइप ऑफ अ गाय दैट ब्रिंग्स द यूएफसी टू आयरलैंड। आई एम द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ आयरिश एमएमए। इस फाइट की बात करें तो काफी लोग इस मैचअप को सही नहीं मान रहे। कुछ लोग का कहना है कि गैरी टाइटल डिजर्व नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्पोर्ट जहां एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटाइज करता है, वहीं रैंकिंग्स पे भी ये मैचअप मेरे हिसाब से प्योर मेरिटोक्रेसी का है। यूएफसी कमेंटेटर जॉन एनिक ने बोला, बेस्ड ऑन हिज बॉडी ऑफ वर्क, इयन मैचाडो गैरी इज अनडिनाइबली द मोस्ट डिजर्विंग कंटेंडर ऑन द प्लेनेट। आप इयन गैरी के रेज्यूमे पे नजर डालिए, उन्होंने कभी भी किसी भी फाइट से बैक डाउन नहीं किया। शॉर्ट नोटिस पे बुगी मैन के अगेंस्ट शफकत रखमानोव फाइट की, फाइटिंग नट्स की 99-0 की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ा और कार्लोस प्राटिस की हाइप ट्रेन डिरेल की, फिर से एक शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद फॉर्मर चैंपियन बिलाल मोहम्मद को हराया और इस रेज्यूमे में टॉप चैलेंजर्स के अगेंस्ट उनका मेन वेपन स्ट्राइकिंग नहीं था बल्कि एंटी रेसलिंग था। डिवीजन के दो बेस्ट ग्रैपलर शफकत और बिलाल के अगेंस्ट गैरी ने कंबाइंड 17 से 15 टेकडाउन डिफेंड किए। इन स्टैट्स ने उन्हें काफी फैंस कमा के दिए। इवन चार्ल्स ओलिवेरा ने भी इयन गैरी के गेम प्लान पे स्ट्रिक्टली रहने की एबिलिटी को प्रेस किया, लेकिन टेक डाउन सर्वाइव करना बाकी के अगेंस्ट डिफरेंट और इस्लाम के अगेंस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाला है। इस्लाम के कोच हावेर मेंडेस ने माना है कि गैरी एक ट्रिकी अपोनेंट होने वाला है, लेकिन ये इंसिस्ट किया है कि गैरी का डिफेंस इनफ नहीं होने वाला है इस्लाम के अगेंस्ट। गैरी के स्पेक्टिक्स काफी लाउड है। पास्ट ओवर कंटेंडर मोरालेस ने बोला है कि गैरी के जीतने के चांस जीरो है, चांस जीरो। बैटिंग में भी ये बात दिख रही है, जहां गैरी अंडरडॉग है। ऑन पेपर वो भले ही मोस्ट डिजर्विंग है, लेकिन केज में वो अंडरडॉग के तौर पे उतरने वाले हैं। गैरी की जर्नी फैसिनेटिंग है, पर क्या उनके स्किल्स काफी होने वाले हैं हबीब के बाद इस स्पोर्ट में मोस्ट डोमिनेंट फोर्स को हराने के लिए? आप बताइए आपका क्या मानना है। अपने यूएफसी 330 के प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। एक्स्ट्रा सपोर्ट आप सुपर थैंक्स से दिखा सकते हैं, जिससे ये चैनल और भी बेहतर होगा। कमेंट में ये भी बताइए कि आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है। अगली वीडियो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूएफसी पे होने वाली है। आपको क्या देखना है आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आपसे अब अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।